Hi, Purnit ji, Om ji. Hi sir, how are you? Yeah, I'm good. We'll take a long breath in and breathe out. Take another complete inhalation and exhale, complete all your worries. Now, breathe in to chant Om. Uh, 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 ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलि प्राणुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुद्धाय च गुरुशुक्रशुक्र राघवे नमः। ओम नमो नमते नमः। ओम पवनसुताय नमः। ओम आरुतिसुताय नमः। ओम श्री जय सिया राम की नमः। ओम राधे कृष्ण के नमः। ओम माँ दुर्गे माँ काली नमः। ओम बाबा भोलेनाथ नमः। माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती गणपति माँ कार्तिक देवाय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णये नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मर्चये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवितृ सूर्य नारायण नमः। मातृदेवो पितृदेवो गुरुदेवो अतिथि। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलि प्राणतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। All Dev Devta, all my ancestors, all my gurus, all my ritual text, whichever giving me the path of wisdom, that is maybe my Muni Rishis, maybe my gurus, my relatives, my friends, that all which are giving me inspiration, the wisdom to stay in the path of dharma and doing the sat karma to get
moksha. So the ultimate goal of yoga is getting moksha from this birth and death cycle of human life. Okay, ma'am, what we'll discuss today? Asanas. Okay. I Yes. think previously we have covered some asanas. So today Yes, we'll sir. cover Prone some. to be. Okay. Let me see. Okay. Is this okay? Each screen is visible, ma'am? Yes, sir. Okay. So in that first asana, Yoga Mudra Asana, next Parvatasana, next Bhadrasana, next Mandukasana, next Ustrasana, next Sasankasana, next Uttana Mandukasana, next Paschima Uttanasana, next Purvattanasana, next Vakrasana, next Ardha Matsyendrasana, and Gomukhasana. I believe in last time this list was not there. In last time it was more supine prone Yes. postures, right? Yes, sir. Okay. So again, if you are coming to asanas, okay, so you know some concept about that. In Patanjali Yoga Sutra it is Sthiram Sukham Asanam. So he's talking he was talking more about like asanas that we can sit comfortably and long time, like Siddhasana, uh, Vajrasana, okay, Dandasana, or if you can say this one, Padmasana, Ardha Padmasana, Sukhasana, and all. Okay, but here, this all in Hatha Yoga Pradipika and Garida Samhita, they have spoke more about asanas that resemblance some animal or some postures which are or working on our different organs, and overall it's giving me the metabolism, overall digestion wise good, okay, activation of pancreas, okay, spinal twist somewhere, like sukshma vayama and all, opening of my all joints and all. So in that way body is prepared for higher practices. Stula vayama, like overall body's activation. Sukshma Vema, part wise activation in different portions of the body. I'm activating from top to bottom or from bottom to top. But here, Stula Vema, I'm activating whole body. Then if I'm doing Surya Namaskara and all, or Chandra Namaskara and all, forward bending, backward bending, different postures are composed. So 7 asanas we are doing. So like that, if I'm coming to Chandra Namaskar, there also I'm doing lateral bendings, and there are so many asanas out of which from your syllabus I have taken this. Okay, so in YWA in our level 2 course, these asanas around 33 asanas. So I can remember ki already we covered around 10, 11 last time, right? 10 to 11 or 12 asanas we covered. So today I'll cover the more Yes, 12. sir. Yeah, which will maybe one day you cannot be comfortable with that, but over a time when you are keeping this practice, and if you know the purpose, what is the benefit from that, okay, what is the indications, who are supposed to do this, which will add in value, and who are supposed to stop or little bit modification, that is called contraindications. And also we little bit we have to, like in YCB they'll definitely ask you, suppose you are doing that forward bending completely, Pada Hastasana. So what is the counter position? So no need to by heart anything. The time I'm bending for the complete this side, breathing out and coming, and you are trying to touch your feet or the mat. Next, okay, breathe in and come up and little bit go back if you have no spinal issues. So this is your Hasta Uttanasana. And if you're little bit you're bending like this with the support with waist, okay, that is Ardha Chandrasana. Like that. If you're doing Ustrasana, camel posture, complete spine is like this. So the other one is Sasankasana, where you can relax. Suppose
Any asanas we are doing, counter position, why you need to know, it's not due to exam. It is like balancing your body's energy. So I'm bending forward. So my whole energy, my blood, every flow will going towards the brain. So spine is completely stretched like this. Now I have to do the opposite so that my energy flow will be goes to the opposite side and I'll not feel any dizziness, uneasiness, and it will balance my body. Suppose I'm doing from the left, then I have to do for the right. Suppose I'm doing the Bhujangasana, then again I lie down on the abdomen, Makarasana to relax. Suppose I'm on the spine. Okay, I'm doing suppose a what you can say, Pavana Muktasana, completely hemorrhaging. Then again, I have to lie down on Savasana. So like that, when you are doing, when you are keeping in the knowledge, if any disease related things you can understand, then automatically it will give you great results. Okay. So first, so just know what is the Sanskrit name, English name, how it is originated and all. What are the correct method, how to enter the posture, where you have to hold the posture, how you are aligning breathing with that, and how you are coming out to the natural posture. So very simple thumb rule. When I'm bending forward, it's breathe out. When I'm coming up from the gravity, so it is breathe in. If I'm going from center to left, breathe out. If I'm breathing in and I'm coming to center. And when I'm going, suppose I'm doing a, suppose Trayaka Tadasana. So there I'm going with a exhalation. But here in the holding posture, again I can do breathe in, breathe out. So that all you have to understand. Otherwise, the things are very easy. Yeah, somewhere you have to understand who are not supposed to do or where I need little bit modification. Those are the key things you have to understand. First one. Okay. Seated postures. Okay. So as I told previously, if you are going for sitting postures, first one you have to take care is you can sit in one asana, especially Danda asana is very powerful because from there you can go to multiple postures. Okay. Danda asana कैसे बैठना है, दोनों टांग को फैला देना है. ओके, फॉरवर्ड सीट एंड पूरा आपका जो अपर बॉडी है 90 डिग्री रहना है लेग के साथ एंड यू आर सिटिंग completely comfortably. So I know for some senior citizen who have some back aches, who have some hip issues, who have some knee issues, they cannot sit on the ground. But I'm saying average people who are fit and who can sit over a time, then Dandasana can do excellent prana flow within the body. And from there only we can move to anything. Okay. So first one, seated yoga postures provide a stable foundation for flexibility, meditations, spinal mobility, and internal organ stimulation. Okay. So they improve musculoskeletal alignment. So this word looking very heavy, but yeah, this is simply you can say muscle alignment will be there. Skeletal is our what you can say trunk, our overall skeletal body. So that all it will do. So muscles also it will give the alignment. Skeleton also it will give the alignment. It will help in digestion. Generally, lot of problems will come with mandagni. So from here you can come out of that. Then circulation, overall Vyana, blood circulation, you can say Vyana circulation is like the prana flow in the whole body and it will activate each part of the body and mental concentration. So when you are doing, automatically ANS will be activated. What is ANS? Autonomous nervous system. So when that is coming, automatically what happens? Your sympathetic nervous system, fight and flight mode, that will get activated. If you are doing pranayama, meditations and all, then you are going to which side? Parasympathetic nervous system, which is called rest and digest. So in that way, when you are doing, definitely will do good. And for any asana you're starting, when you will be a teacher by next 1 2 months, when you are qualifying the exam. So you are responsible for your students. You have to take care of them. You have to observe them. You have to correct them. You have to give feedback. You have to guide them and in a correct process. So Sukshma Vayama is the mandatory thing because as a teacher, as a yoga wellness instructor, I am responsible for the class to give a good experience and a benefit. And mainly, I'll highlight contraindication. Sir, please stop there. Ma'am, please don't bend this. It will give a complication. If some disease and all are there, already they are under medication and all. So something we cannot own completely also. We need their doctor's clearance, physician's clearance. So that all you may feel now it's a little bit rude. You have to tell the student
maybe sir or ma'am, now you are feeling rude, but yes, as I am not a MBBS, as I haven't given a treatment to you, I don't know your medical history. Go to your physician, take a clearance, because if you are feeling uneasy with some asanas, the recommended period for any surgery is 6 months. But some people, for them, healing will be uneasy. Or I have to, as a student, I have to listen my body. Somewhere it is saying no. So there I have to stop. Okay. Now we'll go with the Yoga Mudra Asana. Okay. So this is the one, okay, where yoga is union, mudra is a seal or gesture. So this is not hand gesture, but it's a body gesture. What I'll do Adi Mudra, one thumb inside right hand, then I'll close with 4 fingers and I'll hold back of my spine like this. The back of spine, I'll do like this. And then I'll bend completely down. Okay. And that is nothing but your yoga mudra asana. And in that, you can do body rotation also. In that way, it will definitely help your what I can say, body perfection. Perfection means it will give a good movement to abdomen, spine, your this one, what I can say, your this area, and also overall body movement, whole muscle, skeletons, your trunk movement, all will happen from the hip area and complete from the base of the spine movement will be then. So definitely it will be like you're surrendering first to the supreme consciousness, gratitude and all. So in that way you're bending down. Next energy flow is happening. Egoness will come down and then you are rotating whole body. So in that way also it's good. And traditionally you can practice it in Padmasana, Sukhasana, any posture you can do. Okay. So how to perform it? Sit in Padmasana or Vajrasana, okay, anything that you are comfortable. Even initially, you can go with Sukhasana also, because after Sukhasana, if slowly I'll come to Padmasana also, it's okay. But yes, one of the best thing for doing this is the rotation one and body rotation and all when you are doing it this posture, Sukhasana or Padmasana, but only you are bending in the yoga mudra posture, then Vajrasana is best. Okay? It will give great results. Place hands behind the back on the knees. So I'll put and I'll hold and I'll keep in the back. Inhale deeply. So take a long breath in. When I'm bending down, completely exhale and bend forward slowly. Bring the forehead toward the floor as far as comfortable. Hold with normal breathing and return slowly with while inhaling. Next, benefits. Improves digestion, giving a involuntary muscles good massage. Okay, so especially abdominal related massage. So what is the benefit you'll get? It will improve digestion. Okay, it will do a massage means definitely if some undigested stuff and all that, it will activate and that will come in the stool. Your Jathara Agni, if it is going into Manda Agni, that all will come up. So automatically when waste is eliminating means amma formation or toxin formation will not happen. So automatically stress and all will not generate and you will feel happy. Increases spinal flexibility. Overall, your spine flexibility will happen, calms the mind. मन को शांत करेगा. Stress and anxiety will come down because you are bending forward. Improves overall concentration. So what are the indications? जिनका कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ा एंजाइटी, ओके, खाना पचने में टाइम लग रहा है, स्पेशली कफ प्रकृति का थोड़ा ज्यादा लगता है. कभी पार्टी वार्टी में कोई अलग प्रकृति में ज्यादा खाना हो गया, लेट नाइट खाना खाए तो कैसे हजम होगा? पहले तो वज्रासन में बैठ जाएंगे, वो एक नेक्स्ट डे भी हमें क्या करना है, ये सब आसन करना है कि आगे कोई दिक्कत ना करे. जो खाना मैं खाया हूँ लेट वगैरह में, आज से एटलीस्ट उसका बेटर करने के लिए मुझे योग निद्रा वगैरह करना. लेकिन एक माइल्ड ओबेसिटी भी है, मोटापा है, बेली फैट ज्यादा है, वो लोग अगर ये करेंगे तो गुड रिजल्ट्स देंगे. नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हर्निया, प्रेगनेंसी, सीवियर बैक पेन, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, वो सब इसमें आएगा. सो हर्निया क्या है? आपका एक राइट साइड नाउ में, ओके, बेल्ट पोर्शन में एक एक्स्ट्रा पीस को जो मतलब टीयर करके आके दर्द कर रहा है, तो उसको काट के निकाल देते हैं. सो देन व्हेन स्टिचेस एंड मेश डालते हैं, वहां अगर ज्यादा स्ट्रेच हुआ, सपोज मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, सो उस नर्व पे स्ट्रेस आ रहा है, तो वो दिक्कत कर सकते हैं. एटलीस्ट 6 मंथ्स तक नहीं करेंगे. 6 मंथ्स के बाद भी अगर some uneasiness is there, so you have to go and consult your doctor. And hernia, मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है. प्रेगनेंसी में सामने झुकना एंड ऑल बेबी के लिए खतरा हो सकता है, तो विल अवॉइड इन दैट टाइम. अगर आपका बैक सर्जरी हुआ है, कुछ सीवियर बैक पेन है, मेडिकल इश्यूज है,
अगर मैं ऐसे पूरा बेंड कर दे रहा हूँ, दर्द कर सकता है। तो बिलीवर दैट रिसेंट एनी एब्डोमिनल सर्जरी, अपेंडिक्साइटिस हो, सीजरिन हो, कुछ अलग इश्यूज की वजह से आजकल वो स्टोन वगैरह निकल रहे हैं, उसके लिए कुछ है तो टेक टाइम, डोंट टेक रिस्क एंड स्टे इन दैट पोस्चर। नेक्स्ट, पर्वतासना एंड दंडासना। काउंटर पोजिशन में क्या करना है, ऐसे पर्वतासन में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा झुक गया था तो पूरा ऐसे बैठ जाऊंगा, नहीं तो दंडासन, दोनों पैर फैला के बैठ जाऊंगा। ओके, समझ में आया ये आसना कैसे करते हैं? थोड़ा समझ में आया मैं? जी सर। अगर देखना चाहेंगे, मैं एक बार अभी भी दिखा दे सकता हूँ। दिख रहा है मेरा मेरा लेग्स एंड ऑल दिख रहा है करेक्टली? जी सर। कैसे? हाँ, तो अभी क्या करूंगा, जैसे थोड़ा बॉडी वार्म अप कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, क्योंकि ना मैं अभी कुछ कुछ अलग काम किया हूं तो मेरा बॉडी वार्म अप। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, 5 से 7 मिनट थोड़ा बॉडी वार्म अप कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, कुछ अलग अनइजीनेस ना आए, एनर्जी फ्लो होने के बाद कुछ भी ट्विस्ट करेंगे चलेगा। तो क्या करूंगा, थंब को इनसाइड आदि मुद्रा, इसको पकड़ लूंगा पीछे, ठीक? जैसे मैं आपको दिखाया। अभी क्या करूंगा, आप कोई भी एक आसन में बैठे, अभी मैं जैसे थोड़ा मेरा बेली फैट है, तो मुझे सीधा आसन बहुत अच्छा होगा। क्यों? मुझे कहीं रोकेगा नहीं, नहीं तो पद्मासन में जितना होगा करेंगे। तो द टाइम यू आर एक्सेलिंग एंड कमिंग डाउन, ओके, पहला समर्पण भाव आएगा, ईगो हट हट जाएगा, ब्रेन का फ्रेशनेस आएगा, देन स्टे इन दिस पोस्चर फॉर सम। और नहीं, मुझे वैसे नहीं करना, देन यू कैन डू सिंपली लाइक दिस, थोड़ा बेटर मूवमेंट ऑफ स्पाइन एंड एब्डोमिनल मसाज का पूरा सही से फील होगा। इनहेल, ब्रीथ इन, आउट, पूरा का जगह। ओके, नाउ आई हैव टू डू द काउंटर आल्सो। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। लेकिन इसके लिए पहले अगर दिक्कत हो रहा है, कौन कौन सा चीजें कर सकते हैं, थोड़ा हैंड मूवमेंट कर लीजिए स्टार्टिंग में। ओके, थोड़ा नहीं होगा कुछ लोगों का स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, अगर वो हो गया, थोड़ा करा अंगुष्ठा हो गया, फिर मणिबंध, ब्रीदिंग अलाइनमेंट के साथ धीरे धीरे माइंडफुली करेंगे। उल्टा, right? फिर स्कंद, 1 2 3 4, उल्टा, 5 4 3 2 1। ये सब थोड़ा कर ली, थोड़ा बैंड कर लेंगे। फिर उसके बाद ये अगर हो गया, थोड़ा आपका कुछ अगर पैरों का भी थोड़ा मूवमेंट करना है कर लेंगे। तो क्या हो, वार्म अप करो थोड़ा, ये जो पाद मूला और पाद अंगुष्ठा दोनों का मूवमेंट करें। 1 2 4 5, थोड़ा काफ मसल, थोड़ा गुल्फो शक्ति विकास सकता कोई, माइंडफुली करेंगे तो गुड रिजल्ट्स आएगा। जानु शक्ति विकास का क्रिया के लिए मैं ऐसे भी चीजें कर सकता हूँ, थोड़ा लिम्ब भी मूवमेंट हो जाएगा एंड ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेशन आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं अगर कर रहा हूँ, मतलब मेरा ऑलरेडी कुछ रूटीन हो चुका है, तो मेरे लिए ठीक है। बट who आर कमिंग टू द स्टूडियो और योर क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनका शारीरिक नहीं हुआ, तो वो लोग जितना अगर बॉडी को एक्टिव करेंगे, उनका बॉडी अलाउ करें। फिर अर्ध तितली आसन लेफ्ट से, फिर थोड़ा दोनों को पकड़ के मूवमेंट करें, फिर थोड़ा भद्रासन में बैठ जाएंगे, फिर अगर थोड़ा साइड बेंडिंग करना है, क्योंकि बहुत लोगों को ना स्पाइन वगैरह में बहुत अनइजीनेस रहता है, तो ये वाला कर लेंगे।
4 6 7 8 9 10। उससे आपका आराम देगा। कंधों का जितना धीरे धीरे ध्यान देके देंगे वो अच्छा है। फिर ऐसे पीछे पकड़ने का कोशिश करेंगे तो उससे थोड़े कंधे खुलेंगे। और फिर उल्टा, अगर ये जगह में बहुत स्टिफनेस है, यू कैन डू दिस वार्म्स। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हाथ को खोल देंगे तो उससे क्या होगा, आपका ओवरऑल थोड़ा बेटर लगेगा। और गले में अगर स्टिफनेस है, क्योंकि कुछ लोग सुबह सुबह कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया नाउ, फॉर मी इट्स मॉर्निंग, तो मैं तो एक रूटीन किया, लेकिन बहुत लोग हैं सुबह उठ के पहले फ्रेशअप होके इस सेशन के लिए आ जाएंगे, थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। इन, आउट, इन, उल्टा, इन। इवन इवनिंग में भी बहुत लोग ऑफिस से, ओके, होम मेकर्स अपना घर का काम करके थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेके शाम को आते हैं, तो उन सब क्लासेस में थोड़ा ये चीजें करेंगे। और अगर जितना हो पाएगा स्ट्रेचिंग का कुछ कुछ चीजें अगर करना हो सकता है, इसको पर्वत आसन बोलते हैं। मतलब ऊपर का तरफ ऐसे ऐसे इसको लॉक कर रहा, उल्टा किया, एंड पाम फेसिंग सीलिंग एंड कंप्लीट स्ट्रेच दे दिया, तो उससे भी क्या होगा, थोड़ा खुल जाएगा आपका ओवरऑल बॉडी। ओके, उसके बाद आप सिद्धासन में इसमें उसमें बैठ के अब योग निद्रा, ये योग मुद्रा करेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए। तो मुट्ठी बना के अभी देखिए बॉडी थोड़ा वार्म अप हो गया, खुल गया। देन सिद्धासन में अगर हूँ तो थोड़ा और इजीली बैठ कर पा रहा हूँ, लेकिन आप वज्रासन वगैरह में भी बैठ सकते हैं। तो मूवमेंट वाला नहीं होगा, बट एक झुक के रहने वाला हो जाएगा, ये वाला। दिस इज योग मुद्रा एक्चुअली। एंड मैं थोड़ा अगर मूवमेंट कर रहा हूँ और अच्छे से मसाज होगा, क्यों, पहले सामने दबा था, ये इन्वॉल्यूंटरी मसल सामने दबा था, अभी मैं स्पाइन को, ओके, ओवरऑल एब्डोमेन को मसाज दे रहा हूँ, तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और एक गुड डाइजेशन, कुछ गंदगी है वेस्ट है तो थोड़ा एलिमिनेट करने में मदद कर देगा। स्पाइन का बेस को रोटेट कर रहा हूँ, सो इन दैट वे इट इज वेरी हेल्पफुल। तो सांसों को ध्यान देते हुए करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है पर्वतासन। सो सिटिंग वाला पर्वतासन क्या है, जस्ट मैं इसको इंटरलॉक कर लिया, ऐसे उठाया और ऐसे पूरा स्ट्रेच करके बाइसेप्स कान को टच करेगा। एंड कुछ लोग नमस्ते भी करते हैं, तो नमस्ते करके भी रह पाएंगे, नमस्ते करके भी यू कैन सिट। दिख रहा है ना, पूरा पूरा मेरा हाथ दिख रहा है ना, ये पर्वतासन है। पूरा स्पाइन को स्ट्रेच करके मैं रुका ऐसे नमस्ते। हाथ कट जा रहा है ना थोड़ा, क्योंकि ना मैं लोअर बॉडी को भी ध्यान दे रहा था, उसीलिए नहीं हो पा रहा। ओके, अभी दिख रहा है पूरा। जी सर, विजिबल है। ओके, सो इसमें बाइसेप्स में करके पूरा स्पाइन एरेक्ट करके इस पोस्टर में रह के सीधा देखूंगा, क्योंकि लोग ऐसे वैसे करते हैं पूरा स्ट्रेट। 1 2 3 4 5, नहीं तो ऐसे पर्वतासन में ऐसे नमस्ते करके भी उठा सकते हैं। एंड बाइसेप्स पूरा टच होके ऐसे करना है जैसे आप कुछ रस्सी पकड़ के हो, एंड बॉडी आपका मैट में टच नहीं कर रहा है, उस स्टेज में पूरा रहे। 1 2 3 4, वो है आपका पर्वतासन। तो स्पेशली ये सब चीजें करने के टाइम खाली पेट रहेंगे तो अच्छा। मेरा अभी सुबह है, तो एनीवे वी आर बाय डिफॉल्ट हम लोगों का खाली पेट है। लेकिन आपका इट्स ए इवनिंग, ओके, इवनिंग मतलब खाना खाने का 3 से 4 घंटे के बाद पूरा लाइट स्टोमक में बावेल एंड यूरिनरी ब्लैडर वगैरह सब एम्प्टी रहना है, उस टाइम में करेंगे तो गुड रिजल्ट्स देगा। नेक्स्ट, पर्वतासन, माउंटेन पोस्चर, सीटेड माउंटेड पोस्ट। पर्वतासन में बहुत सारी चीजें हैं। एक है ताड़ासन, को कुछ लोग, ओके, माउंटेन पोस्चर क्यों बोलते हैं, ऐसे पर्वत जो होता है उसको कंपेयर करते हैं। कुछ पर्वत ऐसे फैला हुआ होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओके, डाउनवर्ड डॉग पोस्चर ऐसे करके बॉडी को पूरा सामने की तरफ झुकते हैं, उसको भी पर्वतासन बोलते हैं। और एक है सीटेड जी पर्वतासन। ओके, सीटेड पर्वतासन में क्या करेंगे,
नॉर्मली बैठ जाएंगे और जैसे मैं अभी स्ट्रेच किया हैंड्स को वही सेम। तो पद्मासना या सुखासन में किसी में बैठ जाइए, कोई भी एक पोस्चर ले लीजिए। आपका फिंगर्स को इंटरलॉक कर देंगे एंड उसको सर के ऊपर उल्टा करके ऐसे स्ट्रेच कर देंगे, तो वो है आपका पर्वतासन। तो मेजर स्पाइन इश्यूज में नहीं, और बाकी सब में चलेगा। जिनका नी इंजरी वगैरह है, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, वो लोग चेयर पे वगैरह कर सकते हैं स्मॉल मॉडिफिकेशन के साथ। सो टर्न पाम्स अपवर्ड, इनहेल एंड स्ट्रेच। तो क्या करूंगा, इनहेल करके ऊपर जाऊंगा एंड एक्सेल करके मेरे तरफ लाऊंगा। कीप द स्पाइन इरेक्ट। ऐसे झुक के करेंगे तो गलत होगा, पूरा ऐसे स्ट्रेट करेंगे एंड पूरा कान के पास बाइसेप्स टच होते हैं ऊपर, और सीधा देखेंगे। सो इससे ऐसे ही होगा। होल्ड विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। पोस्चर में जाने के बाद मैं इसमें अगर 10 काउंट कर रहा हूँ, मैं पूरा सांसें होल्ड करूंगा, वो सही नहीं है। लेकिन हर्निया नर्व है तो देख के थोड़ा अनइजीनेस आ सकता है। क्यों? अगर 6 महीना हुआ है उसके बाद भी सूखा नहीं है, कुछ कुछ दर्द है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ओके, और बाकी सब कर सकते हैं। स्पाइन में अगर मेजर कुछ सर्जरी हुआ है, वर्टिब्रा खींचने से दर्द हो रहा है, पिंच पेन हो रहा है, तब नहीं करेंगे। मीठा दर्द होगा चलेगा। क्यों? वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के वजह से कुछ कुछ दिक्कत होता है, उसके उसके लिए यू कैन डू नो वरीज, क्योंकि वो उल्टा आराम देगा। सो पोस्चर इंप्रूव करेगा। जो झुक के बैठते हैं, झुक के कुछ रहते हैं, वो पूरा सीधा हो जाएगा, छाती खुलेगा। तो इन दैट वे गुड। स्पाइन का स्ट्रेच डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। चेस्ट एक्सपांशन होगा तो ऑटोमेटिक मेरा रेस्पिरेटरी के लिए, ब्रीदिंग के लिए अच्छा है। ओके, नेक्स्ट इंक्रीजेस शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ किसी का इंजुरी है तो अलग बात है, शोल्डर प्लेट्स कुछ लगा है, बाइक एक्सीडेंट हो गया है, कुछ कुछ पहले गिर गए हैं, कुछ दर्द हुआ है, तो जिनका ये स्लीप होता है बोन, ये जॉइंट में बहुत हेवी वेट के लिए, कुछ कुछ रीजन के वजह से, तो उन लोगों के लिए नहीं। बाकी सब ऐसे करेंगे तो शोल्डर स्टिफनेस भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं मेरा प्राणा फ्लो हो रहा है तो ओपन अप करेगा, और उसके लिए हम लोग ऑलरेडी कुछ कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए हैं। सो राउंडेड शोल्डर्स जो पूरा फंसा हुआ है, वो उनके लिए बेटर है। पुअर पोस्चर, जो बैठने के टाइम ऐसे झुक के रहते हैं, सीधा नहीं हो रहा है, उनके लिए। रेस्पिरेटरी वीकनेस, जिनका सांस लेने में छोड़ने में दिक्कत हो रहा है, उनके लिए। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सीवियर शोल्डर इंजरी, जिनका बहुत ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह में कुछ चोट लगा है, शोल्डर प्लेट लगा है, हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, फिजियोथेरेपी चल रहा है, वो लोग नहीं कर सकते। फ्रोजन शोल्डर, ओके, सो जिनका पूरा मतलब क्या बोलते हैं, दर्द वर्द होके पूरा दिक्कत है, वो लोग हाथ उठा के पर्वतासन करना दिक्कत करेगा। एक्यूट सर्वाइकल पेन, अगर सर्वाइकल एंड स्पॉन्डिलोसिस C1 to C7 आप लोग को दिखाया था मैं ह्यूमन एनाटॉमी में, तो इस जगह में भी ना अगर मेजर इश्यूज है, देन वी कैन नॉट डू। नेक बेल्ट पहन के कुछ कुछ करके मेडिकेशन है, नहीं कर सकते। सो इसका काउंटर पोजिशन कुछ नहीं है। वो हाथ को उतार के सुखासन में बैठ गए, थोड़ा दंडासन में बैठ गए, वही है बिगर रिलैक्सेशन। तो जो पोस्टर में थे उसमें बैक आ जाना ही आपके लिए रिलैक्सेशन। नेक्स्ट, भद्रासन। अभी जस्ट दिखा रहा था आप लोगों ने भद्रासन। भद्रासन क्या है? दोनों पाँव को जोड़ दूंगा, हील को मेरे पेरिनियम एरिया में, पेरियम में टच करूंगा, और दोनों जांघों को पूरा मैट में टच करूंगा। इसको ग्रेसियस पोज बोलते हैं, भद्र, ऑस्पिशियस और ग्रेसियस पोज। So a classical meditative posture that opens the hips and prepare the body for prolonged sitting. तो अगर एक खुलने लगा, हिप एरिया में वर्क करेगा, जांघा का बैक साइड हैमस्ट्रिंग के लिए स्ट्रेच करेगा, तो आपको क्या एडवांस आसना में आपका जो पश्चिमोत्तानासना है, जानुशीर्षासन है, उन सब में आराम होगा। प्रेगनेंसी वाला लेडी लोगों के लिए अच्छा है। ओके, जिनका जेंट्स का पाइल्स वगैरह कुछ इश्यूज है, उनके लिए अच्छा है। और जिनका उस एरिया में थोड़ा स्टिफनेस है, हिप में, हैमस्ट्रिंग में एंड ऑल, उनके लिए अच्छा है। ओनली नी इंजरी वाले नहीं कर सकते, और बाकी सब कर सकते हैं। और इसके साथ अगर मैं कपाल भाती वगैरह इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मेरा अगर कुछ एब्डोमिनल इश्यूज नहीं है, तो दैट विल गिव ए ग्रेट रिजल्ट। सो सिट विथ सोल्स ऑफ द फीट टुगेदर, दोनों तलवों को ऐसे जोड़ के मेरे सामने लाऊंगा, दोनों मेरा पाँव को ऐसे पकड़ लूंगा, सो दैट वो अलग भी नहीं होगा, तो मैं ऐसे मुट्ठी करके पकड़ लूंगा। होल्ड द फीट विथ बोथ हैंड्स, ब्रिंग हील्स क्लोज टू द पेरिनियम, तो आपका मूलाधार चक्र के नीचे जो है वहां थोड़ा टच करेंगे। कीप द स्पाइन इरेक्ट, आपका स्पाइन को इरेक्ट करेंगे, पूरा सीधा रखेंगे, नेक को स्ट्रेट रखेंगे। रिलैक्स शोल्डर्स एंड ब्रीथ नॉर्मली, थोड़ा छाती को खोल के शोल्डर को रिलैक्स करेंगे एंड ब्रीथ नॉर्मली। अगर आपको इसमें भी कपाल भाती वगैरह इंट्रोड्यूस करना है, यू कैन डू, बट नॉट इनिशियली। इंटीग्रेशन एंड एडवांस चीजें धीरे धीरे करवाएंगे। नेक्स्ट, बेनिफिट्स, इंप्रूव हिप फ्लेक्सिबिलिटी,
ये खुल जाएगा। स्ट्रेंथन्स पेल्विक फ्लोर, ओके, आपका पेल्विक फ्लोर खुलेगा। एनहांसेस सर्कुलेशन इन पेल्विक रीजन, यस, दैट विल हेल्प। सुइटेबल फॉर मेडिटेशन। इंडिकेशंस, ओके, तो इंडिकेशंस क्या है? हिप स्टिफनेस जो बोल रहा था, हिप में, कमर में स्टिफनेस ज्यादा है, हैमस्ट्रिंग में ज्यादा स्टिफनेस है, ओके, नीचे बैठने के लिए बहुत दिक्कत वगैरह हो रहा है, वो लोग अगर ये सब करेंगे धीरे धीरे खुल जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए गुड है भद्रासना, भद्रकोणासन, दिस ऑल, ओके। अर्ध तितली आसन, तितली आसन, ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। टैपिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका मूवमेंट हो जाएगा। जानु शक्ति विकासक करेंगे, उसका स्टिफनेस खत्म होगा, एंड देन यू कैन डू दिस भद्रासना, आराम से होगा। लेकिन हाँ, जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, सीवियर इंजरी, सीनियर सिटीजन्स, मोटापा जिसका है, वो लोग को थोड़ा नी के ऊपर प्रेशर आ सकता है, तो दे कैन अवॉइड एक्यूट हिप आर्थराइटिस। तो आपके हिप एरिया में अगर आर्थराइटिस वाला पेन है, घुटनों में आर्थराइटिस पेन है, एंकल में उसका पेन है, तो आर्थराइटिस वाले को थोड़ा डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। ग्रोइन इंजरी, ग्रोइन कौन सा जगह है? जांघे का इनसाइड को ग्रोइन बोलते हैं ना, जहां हम लोग सलवासन करने के टाइम दोनों मुट्ठी आधी मुद्रा करके ग्रोइन में रखते हैं, वही जगह। उसमें अगर कोई इंजरी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, देन ऑल्सो अवॉइड। काउंटर पोजिशन दंडासन, सीधा ऐसे बैठ जाऊंगा। कोई डाउट मैम? एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट, मंडूकासन। मंडूकासन आपका क्या है? वज्रासन में बैठ के सामने झुक जाऊंगा, और झुकने के टाइम सांस छोड़ते हुए झुकूंगा, और ये दोनों को मुट्ठी बना के अपर पर्सन को नाभि के दोनों तरफ दबा दूंगा। तो क्या होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए पेनक्रियास को एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा है, ओनली बीपी और स्पाइन इश्यूज है तो ही नहीं करेंगे, और बाकी सब कर सकते हैं। नो वे इट विल क्रिएट एनी कॉम्प्लिकेशन। वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में कैसे बैठते हैं आप नो, यू नो ऑलरेडी। दोनों हील को मैं दूर करके रखा है, दोनों हील को दूर किया हूँ, टॉर्सो लेकिन टच हुआ है। तो अगर मैं ऐसे करके बैठ रहा हूँ, ये इंजरी कर देगा, तो ऐसे करके बैठना है। और बहुत इनिशियली लोगों को दिक्कत हो सकता है, ओवर टाइम करेंगे, नी इंजरी वगैरह है नहीं करेंगे। और नीचे ब्रिक अगर ये बीच में रख देंगे, और यहाँ अगर पिल्लो को एंकल का नीचे रख देंगे, होगा। लेकिन एंकल इंजरी, नी इंजरीज, पेट में पहले कोई ऑपरेशन, आपका पेट दबाना है, तो प्रेगनेंसी वाले नहीं करेंगे। और इसमें कुछ नहीं, मुट्ठी बना लूंगा, आदि मुद्रा, दोनों जगह हल्का प्रेस करूंगा। ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट एंड कम फॉरवर्ड एंड स्टे इन द पोस्चर। थोड़ा आज्ञा चक्र की तरफ देखूंगा, सामने देखूंगा ऐसे। मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ कपाल भाती, आप जो भी कर सकते हो, डायबिटिक वालों के लिए ये बढ़िया है। नेक्स्ट, सेकंड वेरिएशन। मैं क्या करूंगा, वही सेम में बैठूंगा, लेफ्ट से मेरा नाभि की जगह को दबाऊंगा, लेफ्ट पाम से, उसके ऊपर राइट पाम रख दूंगा। अगेन ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट एंड कम फॉरवर्ड। क्या करूंगा, थर्ड वेरिएशन, राइट वाले को दबा दूंगा, हाथ को उसके ऊपर लेफ्ट, ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट, कम डाउन, एंड यू कैन इंटीग्रेट एनी टाइप ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट, उत्तन मंडूकासन। जिनका बीपी है, सामने नहीं झुक सकते, उनके लिए मैं क्या करूंगा, यही सेम बैठूंगा, स्ट्रेट रखूंगा, राइट वाला को लेफ्ट शोल्डर प्लेट में लाऊंगा, एंड लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर प्लेट अपोजिट रखूंगा। अपोजिट रख के पूरा छाती बाहर, कंधे खुले हुए सामने देखूंगा, ऐसे झुक के ऊपर नीचे नहीं, पूरा सीधा। एंड आई कैन इंटीग्रेट एनी ब्रीदिंग। मैं कपालभाति कर रहा हूँ, बिकॉज दैट विल बी मोर पावरफुल। द पीपल हु हैव ऑलरेडी डायबिटिक बट दे वांट टू डू the bp, hypertensions are there, they can do this.
फिर समझ में आया मंडूकासन के बारे में? जी सर। मंडूकासन समझ में आया? जी सर। तो इसमें आपका क्या हो गया? मंडूकासन में फ्रॉग पोस्चर, ओके, थोरोपेटिक पोस्चर दैट कंप्रेसेस द एब्डोमेन, स्टिमुलेट द पेनक्रियास। पेनक्रियास किया मतलब बस्ट। तो वज्रासन में बैठेंगे, जिनका दिक्कत है नहीं करेंगे, नी का एंकल का इश्यूज, डोंट डू दैट। ओके, मेक फर्स्ट फिस्ट एंड थम्स इनसाइड द योर एब्डोमेन। ओके, नाभि के दोनों तरफ या आदि मुद्रा करके दबा देंगे। प्लेस फर्स्ट नियर द नेवल रीजन, नाभि के दोनों साइड रख देंगे। एक्सेल द एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड। तो मैं इनहेल करके बैक किया, एक्सेल करके आगे आऊंगा। एंड अप्लाई जेंटल एब्डोमिनल प्रेशर, होल्ड विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो, मैं कपालभाति क्रिया बोथ यू कैन डू। स्टिमुलेट्स पेनक्रियास, ओके, पेनक्रियास को एक्टिवेट कर देगा, जो इंसुलिन जनरेट करेगा, ओके, ग्लाइकोजन वगैरह कर सकते हैं। इंप्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को हेल्प करेगा। कॉन्स्टिपेशन इश्यूज खत्म कर देगा। एब्डोमिनल मसल्स इसको स्ट्रेंथ करेगा। नेक्स्ट, ये सपोर्टिव योगा प्रैक्टिस, प्री डायबिटिक वगैरह ये सब कुछ है तो ये सब करेंगे। और जिनका नहीं भी है वो लोग अभी से करेंगे तो आगे डायबिटिक नहीं होगा, क्योंकि रोज आप ये कर दे रहे हो तो पैनक्रियास एक्टिव ही रह रहा है। इंडाइजेशन को जिनका दिक्कत है वो लोग कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन इश्यूज है, गैस वगैरह है, वो लोग ये करेंगे तो अच्छा रिजल्ट में। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अल्सर वगैरह है पेट में तो, पेप्टिक अल्सर वगैरह तो वो सब लोग थोड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि दर्द होगा, घाव का तरह लगता है पेट में। हर्निया, अगर मेरा हर्निया ऑपरेशन वगैरह हुआ है नहीं झुकूंगा। प्रेगनेंसी वाले नहीं, 6 महीने में एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह हुआ है, कंसल्ट योर डॉक्टर। काउंटर पोस्चर शशांक आसन, ओके। शशांक आसन कैसे करूंगा? वही वज्रासन में बैठ जाऊंगा। ओके, वज्रासन में बैठते हुए मैं क्या करूंगा, धीरे से ऐसे नीचे झुकूंगा और पूरा हाथों को स्ट्रेट करके माथे को टच करूंगा। बालासना, शशांकासना। शशांक का मतलब मून, चंद्र का रिप्रेजेंटेशन। स्टे दिस पोस्चर। अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा पैरों को ऐसे खोल देंगे एंड पूरा ऐसे आगे करेंगे तो और इजीली होगा, क्योंकि बेली फेट वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन माथे को नीचे टाक के ऐसे पूरा लंबे और गहरी सांस लेंगे। ओके, ठीक है मैम, एनी डाउट मैम? जी सर। नो सर। ओके, तो ये सब आपका काउंटर पोजिशन है। तो ये सब में आपको मैम बहुत कॉमन कुछ इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेट में दिक्कत है, हर्निया है, प्रेगनेंसी वगैरह है, ये लेवर्ड, अगर कुछ अलग चीजें हैं वो सब में हम लोग मना करेंगे। उष्ट्रा आसन, कैमल पोस्चर। तो कैमल पोस्चर भी, 1 मिनट मैम, लेट मी टेक 1 मिनट ब्रेक एंड आई फिनिश। श्योर सर। हेलो परनीत जी, है ना? जी सॉरी सर। द ब्रेक। नो प्रॉब्लम।
एक मिनट, मुझे मैसेज करना था। ओके, नेक्स्ट उष्ट्रासन। तो मैम अगर मैं ये सब आसन नॉर्मली कर रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या आप कर रहे हो। जैसे उष्ट्रा मतलब कैमल, कैमल पोस्चर। फिर उसमें मेरा क्या हो रहा है, बैक को पूरा मैं क्या कर रहा हूँ, पकड़ के ऐसे पीछे पूरा निचोड़ दे रहा हूँ। तो पीछे की तरफ पूरा बैक को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, स्पाइन इंजरी है नहीं करेंगे। पहले अर्ध उष्ट्रासन तक धीरे धीरे कोशिश करेंगे। अगर दीवार का सपोर्ट लेना है ले सकते हैं। बीपी वगैरह है, हीमोग्लोबिन ऐसे ऐसे करने से सर घूमेगा, नहीं करेंगे। और अगर उष्ट्रासन सक्सेसफुली कर लिए ऐसे उल्टा, देन आगे शशांकासन में रेस्ट लेंगे। क्यों? दैट विल डेफिनेटली द काउंटर पोजिशन। लेकिन हाँ, नी एंड बैक बेंडिंग पोस्टर दैट ओपन्स द चेस्ट एंड इम्प्रूव स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो नी का इश्यू है तो वज्रासन में ही नहीं बैठ पाओगे तो नी स्टैंड क्या करेंगे, तो वो लोग नहीं करना चाहिए। सो चेस्ट ओपन होगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगा। ओके, आपका स्पाइन को स्ट्रेंथन करेगा एंड ओवरऑल पोस्चर इंप्रूव करेगा। थायराइड रीजन ए वाला जगह में ऐसे स्ट्रेच आएगा, तो डेफिनेटली इट्स गुड। इंडिकेशंस आपका क्या है, राउंडेड शोल्डर, मिल्ड माइल्ड बैक स्टिफनेस, मतलब मेडिकल वाला नहीं, बैठ बैठ के कुछ कुछ करके दर्द हो रहा है, वो लोग करेंगे तो आराम देगा, रिलैक्स करेगा। एंड उससे पहले भी अर्ध चंद्रासन, बाकी ट्रंक मूवमेंट, उन सब में कम कंफर्टेबल होने के बाद उष्ट्रासन आएंगे, स्टार्टिंग में नहीं करवा देंगे। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सो आपका एक गले में अगर कुछ अनइजीनेस है, ऑलरेडी स्पॉन्डिलोसिस का इश्यूज है, नेक बेल्ट वगैरह पहन रहे हैं, मेडिकेशन है नहीं। हर्निया वालों को पूरा स्पाइन का स्ट्रेच करेगा तो दिक्कत करेगा, तो नहीं। लोअर बैक पेन जो मेडिकल वाला है तो नहीं करेंगे। उसका ऑपोजिट शशांकासन है। तो कैसे करेंगे, आपको शशांकासन पता है कि एक बार दिखा दूं मैम? यस एक सर। बार दिखा, एक बार दिखा दूं। जी सर। पर दीवार के पास ले रहे हैं तो वो बेस्ट है। क्यों? आपको ओवरऑल क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, पहले नी स्टैंडिंग में बैठो। अगर जिसको दिक्कत है दीवार का हेल्प लेके ऐसे पहले बेंड करके रुकेंगे थोड़ा, तो उससे क्या होगा, ये जगह खुलेगा और बॉडी स्पाइन का ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी होगा, तो इंजरी कम। नेक्स्ट, नी स्टैंड करके धीरे से मैं क्या करूंगा, ओनली वन हैंड आई रेज एंड दूसरा वाला मेरा एंकल के पास पकड़ लूंगा, जैसे राइट हैंड ऑन राइट एंकल एंड आई एम लुकिंग बैक एंड बेंडिंग, अर्थोस्ट्रास। एंड थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स क्या करूंगा, ये दोनों थम्स को मैं मेरा स्पाइन के ऊपर रख के कमर के ऊपर हाथ रखूंगा, हिप एंड छाती खोलते हुए, शोल्डर खोलते हुए पीछे उसे झुकूंगा और रुकूंगा उस पोस्चर में। लेकिन नी का ऊपर प्रेशर आएगा, ज्यादा नी इंजरी वाले नहीं कर सकते। ओके, ओके, बीपी एंड ऑल लोगों को दिक्कत हो। एंड ये वाला देखिए, मैं बैक जा रहा हूं तो क्या करूंगा, सांसों को धीरे 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 छोड़ते हुए जाऊंगा तो अच्छा होगा। शोल्डर ओपनिंग, कंधों का ओपनिंग, अब इसमें रुकूंगा पहले। अगर एक हो गया देन आई गो फॉर द एडवांस्ड। इसी तरह मैं एडवांस पोस्चर पूरा छाती खोल के पूरा नीचे झुकूंगा। देख पा रहे हैं पूरा, देख पा रहे हैं ना? ओके, नेक्स्ट आपका पूरा झुक जाऊंगा, शशांकासन में आके काउंटर पोजीशन में रेस्ट लूंगा। ओके, एनी डाउट में? कोई डाउट? नो सर। ओके,
मैं थोड़ा क्यों मूवमेंट कर रहा हूँ कि लैपटॉप का चार्जिंग चाहिए बोल के ऊपर आ जा रहा हूँ। ओके, एनीवे एक प्रैक्टिकल सेशन में चाहिए तो मैं सब कंटिन्यूस करके दिखाऊंगा, तो आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा खाली पेट, नहीं तो एटलीस्ट डिनर उसके बाद करेंगे तो बेटर है, क्योंकि डिनर खा के सब नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत होगा। अभी आपका टाइम ऑलमोस्ट आई थिंक 9 साढ़े 9 हो जा रहा है आई थिंक, रात का। जी सर, 9:30। हाँ, तो आपको 6 5 ऐसे खाना खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जिस दिन डिनर स्किप करने का मन है एक करवा देंगे, और नहीं तो एक ऐसे क्लास में करवा देंगे जहां आपका अर्ली मॉर्निंग हो। ठीक है। जी सर। सशंक आसन, हेयर पोस, जो खरगोश वाला पोस। ओके, मून एंड हेयर भी बोलते हैं उसको। शशांक का मतलब चंद्र जी को रिप्रेजेंट। फॉरवर्ड बेंडिंग तो बीपी वगैरह वाला नहीं कर सकते, नहीं तो स्पाइन स्ट्रेच के लिए है। तो जितना आसन है ये लोग किए हैं, ये आसन सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिलैक्स करेगा। ओके, स्ट्रेस को हटाएगा। हम लोग अगर नॉर्मल भी बहुत थके हैं, शशांक आसन, शवासना, मकरासन, ये सब हमें रिलैक्स करने के लिए ही है। आपका एंजाइटी, हाइपरटेंशन, माइल्ड बैक स्टिफनेस वगैरह है, ज्यादा बैठ बैठ के ऑफिस में ड्राइविंग करते करते, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में मूवमेंट ज्यादा नहीं है, शॉपकीपर्स, दुकान वाले, जो लोग थोड़ा बैक में हल्का पेन है, वो लोग ये सब करेंगे तो आराम करें। कॉन्ट्राइंडिकेशन, नी इंजरी वाले नहीं कर सकते। वर्टिगो इश्यूज है, स्पॉन्डिलोलिसिस इश्यू है, अवॉइड करेंगे। एडवांस प्रेगनेंसी स्टेजेस, मैं तो बोलूंगा मत ही करवाओ पहले। क्यों? कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, बच्चे के ऊपर दिक्कत आएगा, तो मत करवाइए। एंड काउंटर पोजिशन उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन कैमल का है इसका हो, क्योंकि मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूं तो ऐसे सामने भी झुकूंगा। उत्ताना मंडूकासन अभी जस्ट दिखाया था। तो जो लोग झुक नहीं पाएंगे ड्यू टू बीपी एंड ऑल, कैसे करेंगे वो लोग? सो एक्सटेंडेड फ्रॉग, वही नी सिटिंग कर देंगे और दोनों तरफ ऐसे पकड़ के पूरा सीधा देखेंगे, एंड इंटीग्रेट विथ ब्रीदिंग। चेस्ट ओपनिंग के लिए अच्छा है। सो चेस्ट ओपनिंग होगा, रेस्पिरेटरी एंड ऑल के लिए अच्छा है। कंधे खुलेंगे। ओके, और जिसका सामने झुकने से सर घूम रहा है, बीपी है, हाइपरटेंशन है, ओके, हीमोग्लोबिन इश्यू की वजह से भी, शॉर्टेज की वजह से भी दिक्कत होता है, तो अपर बैक को स्ट्रांग करेगा। जिनका पुअर पोस्चर है, रेस्पिरेटरी वीकनेसेस वगैरह है, वो लोग के लिए हेल्प करेगा। शोल्डर इंजरी वगैरह जो है वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा स्ट्रेस आता है शोल्डर प्लेट्स पे। ओके, सर्वाइकल पेन है, नहीं करेंगे। नी इंजरीज वगैरह कुछ है, बैठ ही नहीं पाएंगे, तो इसका काउंटर पोजिशन शशांकासन। मतलब इस पोस्टर में अगर आप 5 मिनट रह रहे हो, शशांकासन में 1 2 मिनट रहोगे तो रिलैक्स। नेक्स्ट पश्चिमाउत्तानासन। दंडासन में मैं हिप से पूरा नीचे झुकते हुए पकड़ लूंगा दोनों मेरा टर्सो को, एंड मेरा एक पैर को भी ऐसे पकड़ सकता हूँ, और कपाल को जितना दूर हो पाए, हिप से अगर ओपन करके स्पाइन को डाउन कर रहे हैं, धीरे 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 आपका नी में टच करने का कोशिश करेंगे, होगा। तो पहले जानो शीर्षासन करने के बाद पश्चिमोत्तानासन करने से करेक्ट, क्योंकि जानो शीर्षासन में क्या कर रहा हूँ, एक लेग को फोल्ड करके एक वाला खोल के उधर झुक रहा हूँ, तो एक साइड में झुक रहा हूँ, तो बेली फैट वगैरह से और ट्रंक मूवमेंट से वो थोड़ा आपको बॉडी को प्रिपेयर कर देगा। उसके बाद पश्चिमोत्तानासन सडनली नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो आप पूछ सकते हो मुझे एक जो वाइसी, सर इसका नाम पश्चिमा उत्तानासन क्या है, क्या लॉजिक है? पश्चिमा क्यों? ऋषि लोग और सब पूर्व की तरफ दिशा करके कर रहे थे, पश्चिमा इधर बैक साइड, तो वहां से झुकता है बोल के। पूर्वोत्ताना आसन में क्या करूंगा, दोनों दंडासन में ही बैठा हूं, दोनों हाथों को ऐसे बैक साइड रख दूंगा और पूरा कमर को उठा दूंगा और ऐसे करूंगा, तो वो पूर्वोत्तानासन है। सो पश्चिमोत्तानासन मेरा बैक साइड, पूर्वोत्ताना मेरा सामने वाला, सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग। ओके, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है, बट यस, जिनका हर्निया, प्रेगनेंसी कुछ कुछ है, नहीं झुक सकते, जिनका एब्डोमिनल सर्जरी 5 6 महीना हुआ है, सीजरिन हुआ है, नहीं कर सकते, बीपी वगैरह है, ज्यादा झुकना दिक्कत है, वो लोग नहीं कर सकते। सो डाइजेशन के लिए इंप्रूव। हैमस्ट्रिंग, जांघे का पीछे वाला जगह, उसमें स्ट्रेच आएगा। सो उसके लिए पहले ही हम लोग भद्रासन, भद्रकोणासन, अर्ध तितली आसन सब किए हैं, तो वो खुलेगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, स्पाइन को फ्लेक्स करेगा, मन को काम करेगा। कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, वो लोग बहुत, उनके लिए बेस्ट है टू डू दिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन, स्लिप डिस्क, L3 L4 L5 लोअर लुम्बार रीजन में, कहीं भी लुम्बार रीजन में स्पाइन का इश्यूज है, मेडिकेशन है नहीं। साइटिका पेन, साइटिका अगर है तो आपका हैमस्ट्रिंग वगैरह एरिया में दर्द रहता है, तो वो लोग नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी वाले नहीं। और उसका ऑपोजिट क्या है, पूर्वोत्ताना आसन। फिर नेक्स्ट अगर मैं जाऊंगा पूर्वोत्ताना आसन में, क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा बॉडी को ऐसे उल्टा करके उठा दे रहा हूँ बस, मतलब यही यही सेम दंडासन में हूँ अभी, दोनों हाथ का सपोर्ट रख के, जैसे ऐसे ऐसे दंडासन में ऐसे रहते हैं, उसमें उसका उल्टा रहेंगे, तो पूर्वोत्ताना आसन हो गया। सो शोल्डर स्ट्रेंथ, ओपन चेस्ट, ओके, अपवर्ड प्लैंक पोस्ट बोलते हैं इसको।
क्यों प्लैंक पोज बोलते हैं? ए वाला प्लैंक है, ये उसका उल्टा है और ऐसे करके रहेगा मेरा बॉडी, और दोनों हाथ का सपोर्ट यहाँ रहेगा, तो इसीलिए रिस्ट वगैरह में ठीक, इंजरी वगैरह कुछ है, शोल्डर इंजरी है, नहीं होगा, बाकी सबके लिए बेस्ट। ओके, स्ट्रेंथन रिस्ट, तो मैं ऑलरेडी रिस्ट को खोल चुका हूँ, कंधों को खोल चुका हूँ, ओके, और मैं प्लैंक पोस्चर कर चुका हूँ, तो उसका उल्टा अगर पूर्वोत्तानासन करूंगा बेस्ट, इंप्रूव पोस्चर, राउंडेड शोल्डर्स वगैरह से, और जिनका पूरा स्टिफनेस है उनके लिए हेल्प करेगा। वीक अपर बॉडी वीक है तो वो लोग कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ओके, रिस्ट इंजरी, शोल्डर इंजरी, सीवियर लोअर बैक पेन नहीं करेंगे, उसका उल्टा है पश्चिमोत्तानासन। वक्रासना एंड अर्ध मत्स्येंद्रासना आपको पता है, वो आपका स्पाइनल ट्विस्ट पूरा ऐसे घूम के बैठ जाऊंगा, ओके। तो इसमें क्या करूंगा, एक पैर सीधा रहेगा, एक मेरा फोल्ड होकर नेक्स्ट नी के पास आ जाएगा, देन लेफ्ट हैंड से मैं ऐसे पकड़ के एंकल को, राइट हैंड पूरा स्पाइन के पीछे रह के ऐसे घूम जाऊंगा, एंड आई स्टे इन दिस पोस्चर। लेकिन हर्निया, प्रेगनेंसी में, स्पाइन का इंजरी में ये सब नहीं करेंगे, और बाकी सब कर सकते हैं। ये भी आपका एब्डोमिनल मसल देगा, डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, ओके, पेनक्रियास को दबाएगा, पूरा स्क्वीज करके ऐसे मोड़ देगा, तो उसके लिए अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, बैक स्टिफनेस है तो अच्छा है। स्लिप डिस्क, हर्निया, प्रेगनेंसी, स्पाइनल इंजरी वाले नहीं करेंगे। इसका काउंटर पोजीशन फिर से दंडासन में आ जाना है, काउंटर पोजीशन। लेकिन हाँ, अगर राइट तरफ पूरा ट्विस्ट कर रहा हूँ, देन लेफ्ट भी मैं ट्विस्ट करूंगा, तो दोनों तरफ करने से, अलग अलग लेग से करने से हो जाएगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन स्वामी मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम पे हुआ था हाथी योगा में, वही है फाउंडर ऑफ नाथ परंपरा। तो क्या कर सकते हैं उसमें, लॉर्ड, हाफ लॉर्ड और ऑफ द फिशेस, तो मत्स्येंद्र आसन। इसमें क्या करूंगा मैं, स्पाइनल ट्विस्ट पूरा करूंगा, तो इसमें एक लेग को उठा दूंगा और दूसरा लेग में पूरा बैठ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट वाला पूरा करके ऐसे उल्टा पूरा ट्रस्ट ट्विस्ट करके मैं रोक दूंगा। कॉन्स्टिपेशन, डायबिटिक्स, इसके लिए अच्छा है। प्रेगनेंसी, स्लिप डिस्क, हर्निया वाले नहीं करेंगे। काउंटर पोजीशन दंडासन, तो दंडासन में करेंगे। गोमुखासन क्या है, मैं ऐसे लेफ्ट करके बैठा हूँ, वही सेम एक लेग को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठा हूँ, दूसरे वाला एक नी का बाहर, तो ऐसे अगर करके पकड़ रहा हूँ, एंड उसका काउंटर पोजीशन में ऐसे कर रहा हूँ, और लास्ट में दंडासन में आ जा रहा हूँ, तो वो है गोमुखासन। तो वो भी शोल्डर्स को ओपन करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, पोस्चर इंप्रूव करेगा, अपर बैक स्टिफनेस वगैरह कुछ है तो उसको खोलेगा। तो जिनका शोल्डर स्टिफनेस है, पुअर पोस्चर, हिप स्टिफनेस, वो लोग नहीं करेंगे। तो नी इंजरी, सीवियर शोल्डर इंजरी, कुछ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरह है, वो लोग नहीं कर सकते। एंड इसका फिर दंडासन है। ठीक है मैम, चलिए जी रोकता हूँ आज के लिए, मेरा क्लास है। जय गुरु, हरिओम।